Hello and welcome to the session, guys. On this occasion of World Mental Health Day, we have our own very own prestigious guest, that is Mrs. Sanskriti ma'am over here. So I'd like to introduce Sanskriti ma'am as such over here, where we are going to discuss a lot of things regarding the mental health issues which the students are facing as such, who are studying with us in our platforms in for various other grades or various competitive exams. So, guys, Sanskriti ma'am is a licensed clinical psychologist with a decade of experience, and her areas of expertise include anxiety disorders, personality disorders, and a lot of relationship difficulties, which many of the students I believe so face करते होंगे अभी आजकल, right? And she has been on the advisory panel of Grah Lakshmi and Arogya Dham magazine in the past, and she has also authored a book called Beyond the Stigma, right? She's also edited a book on addiction and written several articles and blogs on mental health issues. तो मेरे ख्याल से ये जो सेशन अभी हम कंडक्ट करने वाले हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज जो बच्चे अभी फेस कर रहे हैं, उसका आपको आंसर्स मिलेगा, उसके कैसे आप वर्कआउट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर पता चलने वाली है. So, ma'am, I would like to start off with a very basic, very simple thing as such कि World Mental Health Day है आज, and on this occasion मैं देख रहा हूँ कि in the very recent times, number of psychologists have increased. Number of psychologists जो हैं हमारे पास वो increase हो चुके हैं. तो ऐसा क्यों है, मतलब कि पहले थोड़े से शायद कम होते थे साइकोलॉजिस्ट. सो व्हाट प्रोबब्ली इज द रीजन कि इज इट लाइक कि अब थोड़ा सा ज्यादा मेंटल इश्यूज होने लगे हैं, पहले नहीं होते थे, या फिर अब अवेयरनेस उस चीज की ज्यादा बढ़ चुकी है? I think you've answered the question really well that अब उसकी अवेयरनेस बढ़ चुकी है. मेंटल हेल्थ इश्यूज हमेशा से ही रहे हैं, जैसे फिजिकल हेल्थ इश्यूज हमेशा रहते हैं, उसका टाइम या सेंचुरी से कोई फर्क नहीं पड़ता. सिमिलरली फॉर मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड साइकोलॉजिस्ट, इवन तो आजकल हम बहुत सुन रहे हैं साइकोलॉजिस्ट के बारे में, साइकोलॉजिस्ट बढ़े हैं जैसे आपने कहा, लेकिन फिर भी मेंटल हेल्थ वर्कफोर्स is really short in terms of the need, the demand. So even in India, the number of mental health professionals required और जितने हैं उसमें vast difference है. So we still need a lot more psychologists to be working जितने mental health issues हमारे population deal कर रही है उसके लिए. Okay, and this is not a very general, बहुत ही casual year नहीं है. The world is on going on with the facing a worldwide pandemic as such. तो बहुत सारे इश्यूज हैं इन वेरियस सेक्टर्स, है ना? अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग इश्यूज हैं, और मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली फोकस करूंगा अपने स्टूडेंट्स के लिए कि वो अभी क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं, वो क्या चीजों को अभी देख रहे हैं, व्हाट दे आर बेसिकली अंडरगोइंग एज ऑफ नाउ. बहुत सारे बच्चे अभी घर के अंदर बैठ के पढ़ाई करते हैं, दे आर नॉट एबल टू गो आउट एंड मीट विद पीपल एज सच, उतना ज्यादा अपने दोस्तों से नहीं मिल पाते हैं. So during this period of COVID and this entire pandemic, बच्चे इंटरनेट से या टेलीविजन से बहुत ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं. So and then they get exposed to a lot of content as well. वो नेगेटिव कंटेंट भी हो सकता है. कोविड से रिलेटेड इतने केसेस बढ़ रहे हैं, इतना whatever is happening, we all know about that those facts as such. Not just the COVID, there are a lot of other negative news as well, which is present in the news and everywhere. तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब how can the students remain positive when we are surrounded with all of that negativity as such in the television और जहाँ पर भी हम हैं. तो स्टूडेंट्स कैसे उस चीज से मतलब अपने आप को फोकस रख सकते हैं, कैसे अपने आप को पॉजिटिव मोड में रख सकते हैं? I think firstly important बात ये है कि सोशल मीडिया पे बहुत तरीके की न्यूज है. There's a lot of positive and negative and extremely upsetting news out there, especially in recent times. So it's very important कि आप एक time limit रखें social media usage में. So I would advocate not just social distancing but also social media distancing to a certain extent. True, not completely, because आजकल के time में social media ही हमारे बहुत काम आ रहा है, whether it is to stay connected to friends or family or for studies. So not entirely, but maybe placing a limit. जैसे दिन में maybe 4 घंटे आप social media को दें, but not too much. And also limit on consumption of COVID related news or other negative and upsetting news. Because definitely अगर आप दिन भर वही पढ़ते रहेंगे, वही देखते रहेंगे, तो it will play heavily on your mind.
So first is to put a limit on social media consumption or usage, and second would be to focus on things that are in your control. जैसे आपने कहा बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा है वर्ल्ड में, एंजाइटी प्रोवोकिंग चल रहा है, पर वो हमारे हाथ में नहीं है. हम वैक्सीन डेवलप नहीं कर सकते हैं, ऑल ऑफ अस वी डोंट हैव दैट कैपेसिटी, वी कैन नॉट मेक दिस पैंडेमिक गो अवे. बट हम क्या कर सकते हैं कि अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट पे फोकस करके उसको बेटर बना सकते हैं, उसको काम और पीसफुल रख सकते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं by following the government directives कि क्या हमें हेल्थ के लिए करना चाहिए. So let's focus on things that are in our control and constantly remind ourselves कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उस पे फोकस नहीं करते हैं. So probably students what they basically probably should be learning from this part is that कि हम अपने पे ध्यान रखें कि मुझे अपने आप के मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं. probably मुझे जिन चीजों से अभी इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, शायद उन नेगेटिव एस्पेक्ट्स को मैं दूर कर सकता हूँ, मैं उन पर शायद सोचना बंद कर दूं. सो प्रोबेबली मेरे अंदर जो पॉजिटिव एक थिंकिंग है वो शायद इम्प्रूव हो सकती है. एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगी कि आई एम नॉट सेइंग कि आप उस बारे में सोचना बंद कर दें, बिकॉज नेचुरली एंजाइटी और वरी हम सब फेस करते हैं, एंड आई वुड स्ट्रेस दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू वरी ऑल्सो फॉर अ लिटिल टाइम. इट्स फाइन टू वरी, इट्स इवन इम्पोर्टेंट टू डू सो, क्योंकि हम अगर अपने नेगेटिव इमोशन से भागेंगे तो वो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले. वी हैव टू फेस देम. सो इट्स ओके टू वरी, इट्स ओके टू बी एंग्शियस, बिकॉज एवरीबडी इज गेटिंग एंग्शियस, दीज आर एंग्शियस टाइम्स. बट जब आप घबरा लिए, जब आप परेशान हो गए, उसके बाद अपने आप को जेंटली पुल करना है इन द अदर डायरेक्शन. अपने आप से क्वेश्चन करना है, ओके दिस इज समथिंग दैट इज वरीसम, पर मेरे कंट्रोल में नहीं है. मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरे कंट्रोल में है कि मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से करूं. For your students specifically, I'm saying कि मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से करूं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखूं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से कनेक्टेड रहूं. So once you worry, then gently turn your focus to things in that are in your control. मैम अनदर वेरी ये बच्चों के क्वेश्चंस हैं, बच्चों से हमने पूछा है कि आपके क्या कंसर्न्स आ रहे हैं. सो दीज आर मेजरली द क्वेश्चंस फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस एज लिमिट्स फ्रॉम 15 years to 25 years as such. तो अभी क्या है कि स्पेसिफिकली इन दिस लास्ट 6-7 months as such बच्चे जो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, स्कूल के बच्चे या फिर इवन 20+ जो ग्रेजुएट्स हैं, उनकी कुछ हॉबीज हुआ करती थी पहले कि दे हैव टू गो फॉर स्विमिंग या फिर दे हैव टू गो आउट फॉर सम आउटडोर एक्टिविटीज एज सच. वो बहुत कम हो चुकी हैं अभी, या फिर कुछ बच्चों के साथ तो एकदम खत्म ही हो चुकी है. एंड वो जो टाइम बचता है बच्चों का, जो पहले शायद वो किसी आउटडोर एक्टिविटी में अपनी उसमें स्पेंड करते थे, किसी एक कंस्ट्रक्टिव काम के लिए वो स्पेंड करते थे, अपने दोस्तों से ही मिलने जा रहे हैं, ऑल ऑफ दैट थिंग, वो जो टाइम बच रहा है उसको ऑक्यूपाई कर लिया है with a lot of this social media, probably, right? So और ये बच्चों का ऐसा है, बच्चों का ऐसा ये प्रॉब्लम है और सभी का प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से. ये क्वेश्चन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हमारे एडल्ट्स के लिए भी है, बिकॉज हम भी शायद बाहर नहीं जा पाते हैं. सो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन ये है कि बच्चे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं विथ दिस सोशल मीडिया, राइट? जो टाइम वो अपना एक किसी आउटडोर एक्टिविटी में स्पेंड करते थे, वो अब उसमें स्पेंड नहीं हो रहा है, वो किसी ऐसी एक्टिविटी में स्पेंड हो रहा है जहां पर अब इंडोर है, किसी सोशल एक्टिविटी, सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, बहुत सारी चीजें होती है, बच्चों के पास बहुत सारी चीजें होती है. तो उसकी वजह से उनका पढ़ाई से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है. दे आर नॉट एबल टू फोकस कि अब मैं पढ़ाई कैसे कर सकता हूँ एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. ओके, तो क्वेश्चन मेरा यही सिंपल सा, बच्चों का यही सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि कैसे मैं इन सारे डिस्ट्रैक्शंस से हट सकूं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा सकूं. ओके, लेट मी आंसर दिस इन 2 parts. सबसे पहली चीज जो आपने कही कि हॉबीज, अब जो आउटडोर हॉबीज थी वो अब नहीं रही हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए. दिस इज एक्चुअली वेरी ट्रेजिक फॉर यंगस्टर्स, क्योंकि इस एज में, टीनेज में जरूरी है टू गो आउट, टू बॉन्ड विद फ्रेंड्स. दैट इज अ डेवलपमेंटल milestone for them. So it's actually sad that they're not able to do so, but let's look for supplemental or alternate options. जैसे अगर आपकी hobby outdoor swimming थी, you cannot do that, perhaps look for other exercise modes that you can do at home. तो आप कई तरीके के YouTube tutorials हैं, you can do yoga, you can take up some other form of dancing or any other exercise जो कि आपकी एक exercise को के लिए एक alternate hobby
हो। सिमिलरली अगर आप डांसिंग सीखते थे या डांसिंग करते थे बाहर जाके, यू कैन डू दैट एट होम एज वेल, और टेक अप अदर ऑप्शंस दैट आर इन आर्ट. So maybe try other hobbies like art and painting or gardening or cooking for that matter, and you never know कब क्या क्लिक कर जाए, कब एक नई हॉबी आपको पसंद आ जाए. तो पहला तो ये कि maybe experiment on other things, on other hobbies. शायद उससे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी निकले और कुछ ऐसी स्किल्स आपके अंदर आपको पता चले जो you did not know you had till now. Probably some hidden skills, some hidden talents. Absolutely. And when it comes to concentration, I know this is a very common question at this age, how to concentrate in studies. So how to concentrate is, I would say that firstly, अगर आपको लगता है आप बैठ के concentrate नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको उस पढ़ने के जो बैठते हैं उस टाइम को थोड़ा सा आप रिड्यूस करके स्टार्ट करिए. We advise to take incremental steps. So I would say first let's study for 25 minutes or half an hour. And जैसे आपको लगता है आपका concentration break हो रहा है, आप distract हो रहे हो, तब आप 5 मिनट या 10 मिनट का break लीजिए. Just go around the house, have a drink of water, talk to someone, go outside in your balcony, perhaps have some fresh air. Just change of the physical environment, change of your taste buds. अगर आप कुछ खा पी ले उस बीच, कुछ और देख ले, किसी और से बात कर ले, and then come back and sit down again. So breaks ले लेके पढ़े rather than expecting कि आप hours and hours के लिए concentration बढ़ा लेंगे. In fact, the more breaks you take, अब होता क्या है, स्टूडेंट्स जब पढ़ने बैठते हैं उन्हें लगता है इतनी पढ़ाई है, ब्रेक कैसे ले ले. बट जो आप 5 और 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, उससे आपका कंसंट्रेशन और एफिशिएंसी पढ़ाई में improve होगी. So that will actually add on to your studies, not lessen it. And secondly, to improve concentration, try and keep your mobile phones aside while studying. Apps delete करना, कई बच्चे सोचते हैं हम सब ऐप डिलीट कर देते हैं तो शायद हम concentrate कर पाएंगे, बट ये एक एक्सट्रीम सोल्यूशन है. एंड दिस ऑल्सो सजेस्ट कि आपका खुद पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो हम ऐसा नहीं सजेस्ट करेंगे. हम कहेंगे आप खुद के लिए गोल बनाइए, मैं 20 मिनट्स पढ़ के फिर फोन देखूंगा, या 30 मिनट्स पढ़ के फिर फोन देखूंगी. सो दैट मीन्स यू आर प्लेसिंग अ लिमिट ऑन योरसेल्फ, यू आर सेल्फ डिसिप्लिनिंग, व्हिच इज इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट एट दिस एज. So basically, students के लिए बहुत important चीज है कि देखिए concentration lose होना या focus lose होना, ये probably शायद सभी student के साथ होता है, ये हमारे साथ भी होता है, सभी के साथ होता है, because a lot of distractions. अभी social media का distraction है, और शायद 10 साल बाद किसी और चीज का distraction रहेगा, और 10 साल पहले शायद किसी और चीज के distraction रहते थे. So उसका एक simple सा solution जो यहाँ पर बच्चों के लिए मैम ने बताया है कि आप लोग ब्रेक्स लेके पढ़ाई करिए. जब भी ऐसा लग रहा है कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो अपना जो the stretch for which you are sitting and studying might not be of 2 hours, it might be of just like 45 minutes. आप बस आधे घंटे के लिए, शायद आप सिर्फ 40 मिनट्स के लिए बैठ रहे हैं और फिर पढ़ रहे हैं, फिर एक छोटा सा ब्रेक लिया, रिफ्रेश कर लिया खुद को, और फिर वापस आपके जुड़ गए. थैंक यू. यहाँ पे एक और चीज ऐड करूंगी, स्मॉल थिंग, दैट आई कॉल दिस द 5 मिनट रूल. दैट जब आपको लगे हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप खुद को बोलिए ओके 5 more minutes I'll go and then I'll take a break. एंड ऐसे आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी एक बार में बैठने की बढ़ती जा रही है. सो 5 मिनट्स करके यू आर एक्चुअली स्ट्रेचिंग योर कंसंट्रेशन कैपेसिटी. मैम ने जो बहुत अच्छा सा टिप दिया है हम लोगों को बच्चों, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत सारे बच्चे इसको इम्प्लीमेंट जरूर से करेंगे, और निराश मत होना कि आपसे ये आज से ही अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है. हो सकता है कि इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 week और 2 weeks हो सकते हैं. डेफिनेटली आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, आप इस पे अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे, तो डेफिनेटली ये चीज आप कर सकेंगे. सो इट्स अ वेरी गुड टिप मैम. एज सच मैम, और भी बच्चों के इश्यूज रहते हैं, वेरी जेनरिक इश्यूज एज सच, कि एग्जाम से पहले वो जो एंजाइटी होती है, जो एग्जाम के, जब 3 घंटे का एग्जाम में दे रहा हूँ, तो तब भी बच्चे कुछ तो ब्लैकआउट हो जाते हैं. मुझे लगता है, बच्चों को लगता है कि मैंने अभी तक जितनी साल भर प्रिपरेशन करी थी, वो शायद सब कुछ मैं भूलता जा रहा हूँ, फिर मैं भूलती जा रही हूँ. तो वो जो एग्जाम की पहले की एंजाइटी होती है, या फिर जो स्लीपलेस नाइट्स होती है हमारी, हमको रात भर नींद नहीं आती, जब अगले दिन सुबह जाके एग्जाम देने का ऐसा होता है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू रहता है. तो मेरा पर्सनल क्वेश्चन मेरा ये भी है, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच आई हैड आल्सो फेस्ड व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट. तो क्या ये जेनरिक होता है, क्या ये सभी के साथ होता है?
फर्स्ट थिंग। एंड अगर ऐसा होता है, इफ इट इज अ वेरी कॉमन थिंग, तो इससे हम क्या करें कि मतलब वी कैन ओवरकम विद दिस पार्ट एंड कोप अप विद दिस पार्ट, ताकि हमारा एग्जाम अच्छा जाए। सी फर्स्टली जैसे आपने कहा कि कॉमन तो है, ये नहीं कह सकते कि सबके साथ होता है, बिकॉज हर किसी के एंजाइटी के एरियाज अलग अलग होते हैं. somebody is anxious about their looks, somebody is anxious about their health, somebody is anxious about exams. So not everyone, but yes, a lot of people deal with exam anxiety. अब नॉर्मली हम एंशियस सिचुएशंस में जो सजेस्ट करते हैं कि उस सिचुएशन को आप बार बार खुद को एक्सपोज करें, बट एग्जाम तो हम खुद से नहीं कर सकते जो हम बार बार एक्सपोज करें कि हम और एग्जाम्स से अपीयर करें. सो व्हाट वी कैन डू इज अ फ्यू थिंग्स. फर्स्टली स्लीप की बात करते हैं. स्लीप में प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि हम सोचते हैं कि अब इतने ही घंटे रह गए हैं उठने के, जल्दी से सो जाते हैं, राइट? एंड स्लीप इज अ नेचुरल थिंग. व्हेनेवर यू विल ट्राई टू स्लीप कि अब सोना जरूरी है मेरे लिए, तो नींद नहीं आएगी, राइट? सो आई वुड सजेस्ट कि ऐसे टाइम में आप फोकस करिए कि आप आराम से बेड पे लेट जाएं जब भी आपका सोने का टाइम है. ड्रेस कंफर्टेबली, मिनिमम डिस्ट्रैक्शंस अराउंड यू, और फोकस ऑन जस्ट रिलैक्सिंग योर बॉडी. उसके बाद अगर आपको नींद आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो ठीक है. नॉर्मली जब आप ऐसी अप्रोच लेंगे तो नींद आ ही जाएगी, बिकॉज नींद कोशिश से नहीं आती है. You fall asleep when you're relaxed. When you try to sleep, you'll never be relaxed, so you'll never be able to sleep. Right? So focus on just relaxing your body. और उसके लिए हम हेल्प कर सकते हैं. Maybe think about अगर आप कहीं कोई वेकेशन पे गए थे जहाँ पे आपको बहुत सुंदर सीनरी दिखी थी, try to reimagine that scenery. So think of positive memories that can be relaxing. Think of being on a beach and try to think about how the sand is feeling under your feet. वाटर की कैसे स्प्लैशिंग नॉइज आ रही है, आवाज आ रही है, बर्ड्स चर्पिंग, सनसेट. सो फोकसिंग ऑल 5 सेंसेस ऑन अ पॉजिटिव इमेज दैट कैन हेल्प यू रिलैक्स एंड पुट यू टू स्लीप. ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे रिलैक्सिंग ऑडियोज हैं और गाइडेड, इसको हम बोलते हैं गाइडेड मेडिटेशन. तो ये आपको 5 मिनट्स 10 मिनट्स और मोर, यू विल फाइंड इट ऑन यूट्यूब. सो यू कैन पुट दैट इन द बैकग्राउंड and that can help you sleep, that can help you relax. So for sleep I'd suggest focus on relaxation, positive memories and imagery to help you relax. Now second, about the exam anxiety. एक कई लोगों को एग्जाम टाइम में पैनिक अटैक आने लगता है. पैनिक अटैक में क्या होता है? इंटेंस पीरियड ऑफ एंजाइटी, जिसमें आपको 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक इंटेंस एंजाइटी होती है. उसमें सांस फूलने लगती है, कई लोगों को दिल की धड़कन बढ़ जाती है, चेस्ट में प्रेशर फील होता है, एंड यू फील लाइक यू आर गोइंग टू गो क्रेजी और यू आर गोइंग टू कोलैप्स और समथिंग विल हैपन टू यू. Yes. But it is important to remember that that is like a wave. So जैसे wave ऊपर जाके नीचे आती है, ऐसे ही panic attack भी ऊपर जाके अपने आप नीचे आता है. Our body and mind are built that way. So it's okay to get a panic attack. Don't panic about that panic attack later. Right? जो secondary panic है कि ये क्यों हुआ, वो मत करिए. Let it pass. And after it passes, get back to your studies. And even during, कुछ भी extra या करने को हम नहीं बोलते. मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगी कि उस टाइम पे आप पानी पीजिए या दवाई खाइए या बाहर खुली हवा में चले जाइए. डू नथिंग, जस्ट डू व्हाटएवर यू बीन डूइंग एंड यू अलाउ इट टू पास, एंड ग्रेजुअली इट विल पास एंड यू विल बी ओके. बट अगेन इफ यू आर फेसिंग, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू देयर, बट अगर आपको ये persistently ये प्रॉब्लम हो रही है, then you must go and visit a psychologist. That's great. That's great. बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, प्रॉब्लम उनको समझ में आ रहा है कि इट्स अ कॉमन थिंग और इस पे आपको उतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए. मैम मैं खुद भी जब मैं क्लास, मुझे अभी ये इंसिडेंस याद आया, जब मैं क्लास 10th में था बहुत पहले, तो जब मैं पहली बार बोर्ड्स का एग्जाम देने गया था, पहला मेरा 10th बोर्ड का एग्जाम था सोशल स्टडीज का. तो सोशल स्टडीज बहुत बड़ा सब्जेक्ट हुआ करता था, उससे बहुत सारा कंटेंट होता था कि हमको याद में रखना होता था. तो जब मैं जा रहा था एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो ऐसा लगा कि सब कुछ मैं भूलता जा रहा हूँ. और फिर मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे मेरे आसपास सारे दोस्त, सारे मेरे क्लासमेट्स पढ़ाई कर रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं और एकदम रिलैक्स्ड है. तो हो सकता है कि वो भी किसी स्ट्रेस में हो, राइट? हमारे दोस्त जो भी हमारे साथ हैं, वो भी हो सकता है किसी स्ट्रेस में, हमको नहीं दिख रहा है. तो ऐसा होता है कि भाई बहुत बार कि हमको लगता है कि सिर्फ शायद हमारे साथ ही इतना ज्यादा स्ट्रेस है या फिर हमारे साथ इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है. तो ऐसा नहीं होता है बच्चों, सभी. और ये एक वो चीज होती है जिसका हम लोग बाद में, अब मैं उसको एंजॉय करता हूँ उस चीज को, कि अच्छा मेरे साथ ये वो एक बहुत अच्छी लर्निंग के रूप में मैं उसको लेता हूँ. सो दैट्स गुड थिंग मैम, आपने जो बताया. एक और मैम बहुत
बहुत बहुत बहुत क्रूशल सब प्रॉब्लम है यहाँ पर सभी बच्चों का कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकलता है, प्रोबब्ली सेकंड में भी नहीं निकला या फिर थर्ड में भी कभी नहीं निकला, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेट्स से स्कूल स्टैंडर्ड एज वेल, तो आपके प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, कुछ भी एग्जाम्स हो रहे हैं, स्कूल एग्जाम्स वगैरह हो रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी और फिर रिजल्ट नहीं आता है मैम, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। और फिर ड्यू टू ऑल ऑफ दीज मल्टीपल फेलियर्स फिर बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन होने लगता है बच्चों को, बिकॉज सोसाइटी का प्रेशर अलग होता है, द प्रेशर ऑफ स्कोरिंग वेल एंड कंपीटिंग इन दिस वर्ल्ड एज सच, तो अलग अलग तरह के प्रेशर्स होते हैं, सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, सिबलिंग्स का प्रेशर, हर तरह के बहुत सारे प्रेशर्स रहते हैं कि यू नीड टू परफॉर्म वेल एंड आउटकम come up with some flying colors। तो प्रॉब्लम ये है कि इस पार्ट से कि सभी बच्चे तो एग्जाम को क्लियर कर नहीं पाते हैं। इंडिया में बहुत सारे लाखों बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और कुछ का सिलेक्शन हो जाता है, कुछ का नहीं हो पाता है। तो स्पेसिफिकली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका नहीं निकला, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेट्स से क्लियर नहीं हुआ, बहुत सारे मल्टीपल फेलियर्स हो गए, तो वो जिस माइंडसेट में चले जाते हैं, एक नेगेटिव माइंडसेट, डिमोटिवेटिंग माइंडसेट, उससे कैसे वो कोप अप करें और कैसे वो फिर आगे बढ़े, that's my next question। Yeah, that's a very relevant question क्योंकि बहुत लोग ये फेस करते हैं, यंगस्टर्स भी और अडल्ट्स भी कई बार मल्टीपल फेलियर्स से हम सभी डिजेक्टेड फील करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी कहा था, that it's okay to feel upset, it's only natural। अगर आप फेलियर्स एनकाउंटर करते हैं तो अपसेट होना नेचुरल सी बात है, और वो उन फीलिंग्स को सही वे में प्रोसेस करना, गो थ्रू करना, वो भी जरूरी है। तो यू टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट इट, या फैमिली जिससे भी कंफर्टेबल है, पहले तो उनसे उस बारे में बात करें, वेंट आउट योर इमोशंस, अपने आप को एक्सप्रेस करें। अगर आप वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते बोल के, तो मे बी स्टार्ट जर्नलिंग। आप एक डायरी मेंटेन करिए, उसमें लिखिए अपने इमोशंस। लिखने में कंफर्टेबल नहीं है तो डू ऑडियो जर्नलिंग, रिकॉर्ड इन योर फोन। सबके फोन में आजकल वॉइस रिकॉर्डर ऑप्शन है। If you can't do that also, then there are various other ways, sing songs, use art for expressing yourself। So first of all, go through that emotion, because अगर हमें किसी चीज को ओवरकम करना है तो उसके थ्रू जाना जरूरी है। हम बिना उस चीज को फेस करे ओवरकम नहीं कर सकते। So first of all, face your negative emotions, face your dejected emotions। ये इसलिए लोग नहीं करते क्योंकि हमारी सोसाइटी में हमेशा से कहा जाता है कि अरे टेंशन मत लो, अपसेट मत हो। सब लोग यही सजेस्ट करते हैं, इस बारे में मत सोचो, जो चीज परेशान करती है उस बारे में सोचना ही क्यों, बट ये जरूरी है। तो पहले तो उस बारे में आप सोचिए, लोगों से बात करिए। दूसरा, प्रेशर की जहां तक बात है, तो प्रेशर सोसाइटी तो करेगी ही, वी कैन नॉट चेंज द सोसाइटी और इट्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस। बट अगर हम खुद अपनी एक्सपेक्टेशंस को, या जो प्रेशर हमारी तरफ से हमारे लिए आ रहा है, उसको अगर चेक में रखेंगे तो सोसाइटी कुछ भी कहे, हम पे मिनिमल इफेक्ट आएगा। ये नहीं कि बिल्कुल नहीं कह सकते, बट मिनिमल इफेक्ट आएगा। सो यू चेक योर एक्सपेक्टेशंस एंड अगेन, जो हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं, हमें खुद को रिमाइंड कराना है बार बार कि पास्ट में जो एग्जाम हो गए जिसमें फेलियर हुआ, उनको तो हम जाके चेंज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट चेंज द रिजल्ट नाउ, वी कैन बी सैड अबाउट इट, बट वी कैन नॉट चेंज द रिजल्ट नाउ। सो एवरी टाइम यू फील सैड कि अरे यार इतनी कोशिश करी फिर भी मैं फेलियर्स एनकाउंटर करे, गिव योरसेल्फ 15 minutes to be sad about it. After 15 minutes, remind yourselves, okay, but can I go back and change it? No, I cannot. What is it that I should focus on right now? Performing well in the current exam. तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि उस चीज से ध्यान हटा के अभी पढ़ने में ध्यान लगाऊं ताकि आगे रिजल्ट अच्छा। So always focusing on things that you can control, जो present में चल रही हैं, that helps you feel more in control, more empowered, and less upset and frustrated. Okay, that's great. So it's a simple thing. Probably ma'am, जो आपने starting में एक चीज बताया कि many of the times, ये बहुत सारे बच्चों का concern मैं अभी सुनता हूँ, बच्चों ने बताया भी है कि that they are not able to express themselves। उनको लगता नहीं है कि यार मेरा ये जो पर्सनल प्रॉब्लम है, I'm undergoing with some mental issue or something like that, वो शेयर नहीं कर पाते हैं किसी के भी साथ। ना उनको लगता नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर अपने इशू को अपने पेरेंट्स के साथ या फिर अपने ब्रदर सिस्टर के साथ शेयर कर सकते। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है। सो माय पॉइंट ओवर हियर इज कि इज इट इस सिचुएशन में वो बच्चों को क्या करना चाहिए?
मतलब इज इट फाइन, उनको ऐसा क्या उनको गलत लग रहा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ इन चीजों को शेयर ना करें, क्या उनको अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए? या फिर इसका ऑल्टरनेटिव जो आपने ऑलरेडी बता दिया कि यू कैन स्टार्ट राइटिंग डाउन ऑल ऑफ व्हाटएवर इज गोइंग इन योर हेड, और प्रोबब्ली यू कैन ऑडियो रिकॉर्ड दैट पार्ट। तो इस चीज पे उनको क्या करना चाहिए जहां पर वो अपनी चीज को शेयर नहीं कर पा रहे हैं? हम सब बच्चों को एक ब्लैंकेट एडवाइस नहीं दे सकते दैट यू नीड टू शेयर विद योर पेरेंट्स, बिकॉज ये पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब बच्चे कोई नेगेटिव इमोशन शेयर करें तो उसको खुले दिमाग से सुने और उस फीलिंग्स को वैलिडेट करें. So a lot of times when parents maybe shame or embarrass, obviously unintentionally, but end up shaming or embarrassing the child, जब वो ऐसे कोई बात शेयर करते हैं तो बच्चे अपने आप धीरे धीरे क्लोज ऑफ होने लगते हैं. तो हम सिंपली बच्चों को ये नहीं कह सकते दैट यू स्टार्ट शेयरिंग विद योर पेरेंट्स, बट ट्रू यू कैन ट्राई एंड टेस्ट द वाटर्स अ लिटिल. सो मे बी आप कोई एक बात या अपनी बात को थोड़ा सा मेलो करके आप शेयर करके देखें. इफ यू गेट अ गुड रिस्पॉन्स, शेयर मोर. So with parents you can try that कि आपने थोड़ी सी अपनी बात शेयर करी, आपको अच्छा लगा, अगर if you feel relieved then you go ahead and share more. Otherwise friends are there for a reason, and for children of a young age friends are extremely important. So share with your friends more often than not. जैसे आपने एग्जांपल दिया कि हमें लगता है हम ही go through कर रहे हैं, but हम देखते हैं सब everybody is going through that. Now the thing is that it is going in our mind, और हम भी सुपरफिशियली हम भी सबको ठीक लग रहे हैं. सो एवरीबॉडी लुक्स एट अस एंड फील्स कि ये तो ठीक है, हम ही परेशान है. एंड इट्स द सेम स्टोरी एवरीवेयर, दैट एवरीबॉडी इज गोइंग थ्रू देयर ओन इंटरनल स्ट्रगल, बट इफ वी शेयर विद ईच अदर वी विल नो कि सभी हर कोई कोई ना कोई प्रॉब्लम सभी गुजर रहे हैं, सभी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. तो फ्रेंड्स से शेयर करें अगर फैमिली नहीं अवेलेबल है. ट्राई टू फॉर्म अ बॉन्ड विद योर सिबलिंग्स दैट वे. And again, whenever you're unsure कि reaction कैसा आएगा, start with something small, easier to handle. So test the waters before you go all in. So step by step बच्चों से यही मतलब what we are understanding from here कि आप एक साथ, अगर आपको लगता है कि अपने पेरेंट्स से शेयर करने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, they might not be able to understand the things, छोटी छोटी चीजें पहले शेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि हाँ पेरेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड, या फिर नॉट जस्ट पेरेंट्स, अवर फैमिली मेंबर्स, then gradually we can share more stuff as such. Yeah, that's great. That's great. Good point for every student as such over here. Ma'am, तो एक और important चीज है, we have discussed a lot of negative aspects as such as of now, but I believe there is another aspect of this part. There are a lot of students, there are a lot of people around us जिनको पता होता है कि हाँ सामने वाला बंदा, सामने वाला जो स्टूडेंट है, he is undergoing certain mental health issue, बट हमको पता नहीं होता है कि हम उसके साथ कैसे बिहेव करें. हाउ कैन वी हेल्प दैट पर्टिकुलर पर्सन बाय नॉट हार्मिंग दैट पर्सन, और उसको ज्यादा परेशान ना करते हुए ताकि उसकी प्रॉब्लम और एग्रेवेट ना हो जाए. हाउ टू बिहेव विद दैट पर्टिकुलर पर्सन, उससे बात कैसे करें, उससे कैसे उसका जो इशू है उसको कैसे कम करा सकते हैं. हाउ कैन वी डू दैट? How can the person basically need to behave? That's a very great question because a lot of us don't know that. Now let's go to the basics. Mental health issues किसको होते हैं? हम सभी को होते हैं, right? They are common and happens to everybody. Now because they happen to everybody, not people who are extraordinary in that manner. All of us ordinary people, we need to behave the way we should behave ideally with everyone. And that is with compassion. आप किसी को अपनी बात कहने का मौका दें. First of all, sometimes we all are preoccupied. हम कोई और हमें अपनी कोई प्रॉब्लम बताता है, हम उसे अपनी प्रॉब्लम बताने लगते हैं, right? तो ये तो कुछ भी नहीं है, this is what I am going through. So it's important first to listen. To listen is important in any relationship with anybody. So let the person speak their heart out. Whatever is in their mind and heart, whatever they need to say, पहले तो उन्हें बोलने दें अपनी बात. दूसरा, उन फीलिंग्स को वैलिडेट करें. नाउ व्हाट डज इट मीन बाय वैलिडेटिंग फीलिंग्स? वैलिडेटिंग फीलिंग्स का मतलब, जैसे अगर आपने मुझे कोई बात बताई कि मुझे इस पे बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा इस पे गुस्सा करने वाली तो कोई बात नहीं है, आई एम नॉट वैलिडेटिंग योर फीलिंग्स. आई कैन नॉट डिसाइड whether you should or should not feel angry about something, right? Feelings are natural. अगर आपको गुस्सा आया तो आया, right? So if I say कि तुम बेकार की बातों पे गुस्सा करते हो या इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है, then I'm not validating your feelings and you will not feel comfortable to open up further with me, right? So if ideally I should say, okay, I understand how that must have made you angry.
how do you feel now, or what did you do later on. So asking, first point is to listen, second is to validate feelings, third is to ask open ended questions. अब कैसा लग रहा है, तो तुमने क्या किया, how do you feel now, what do you think will happen in the future. Open ended questions, ताकि सामने वाले को और बात करने का मौका मिले, they get an opportunity to express themselves more, right. And then being compassionate, not giving them advice based on your point of view. Again, that happens very commonly in friendships and relationships. जो हमें सही लगता है वो हम दूसरे को बता देते हैं. But you should help the other person reach their own conclusion. Ask them, what do you think you should do? तुम्हें क्या लगता है कैसे problem solve होगी? What would you ask the other person? What would you advise if I was asking you this question? Right? So let them reach their own conclusions with your guidance. And then, of course, we fulfill the duty of friends by, trying to, if they've been sad enough, trying to distract them, trying to lighten up the mood. But first, have this important talk. So give the person space to express themselves is key, and being accepting of those feelings is also important. Great. So, a very nice suggestion for all the students as such over here. And, ma'am, there is one major issue, what I believe, amongst all the students, which very less people talk about. उसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, and students do not know how to handle that thing. Maybe it's because of the age, or I don't know what exactly it is. ये अपने parents साथ discussion करने में बहुत problem होती है. That is with respect to their relationship issues. So इसकी वजह से बच्चों का जो माइंड होता है बहुत सारा डाइवर्टेड रहता है. दे आर नॉट एबल टू फोकस ऑन देयर स्टडीज. एक जो काम उनको पता होता है, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि दे नो दैट दे हैव टू प्रिपेयर फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जेईई की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है, या फिर किसी एग्जाम एसएससी बैंकिंग की तैयारी करनी है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, बट स्टिल दे आर काइंड ऑफ ट्रैप्ड इन दिस पार्ट की with this part of girlfriends, boyfriends, and various other things that goes on in this age, in school or maybe in colleges, or maybe when they are preparing for any competitive exam. तो इस चीज से कैसे बच्चों को cope up करना चाहिए, and what is your advice for the students कि what should be done in this particular age to handle this very crucial part which the students face in this particular age? See, firstly, I'd say that at this age, it's important to form intimacy also. I mean, even though in Indian culture, we always listen parents saying कि अभी पढ़ाई की उम्र है, अभी पढ़ाई पे focus करो, अभी कोई relationship नहीं. But that's not psychologically and correct, because this age is important both for career building or education as well as relationships. It cannot wait, and it need not wait. जैसे adults भी अपनी life के various aspects को juggle करते हैं, job, family or partner and kids. ऐसे ही even young adults can juggle different aspects of their life. So firstly, they need not choose. And I think part of why it becomes so difficult for them is because they've been fed this stigma or lie, I'll say, that it's something that will disrupt their studies. So they end up believing it, even though they may be in a relationship. Somewhere they end up believing in it that this is not good for my studies. So let me tell you, it's perfectly fine for your studies. You can have different aspects of your life and be able to juggle it. You juggle different aspects in your school, different subjects in your school. You juggle extracurricular activities and a home life. Similarly, you can juggle a relationship also. So it's fine to be in a relationship. To focus on your studies, again, you need to be careful कि कहीं वो relationship toxic तो नहीं हो रही. ज़्यादातर problem relationships की वजह से नहीं होती, उसकी nature की वजह से होती है. So sometimes the dynamic is such that that either partner gets too possessive. There is immaturity at a certain age, so there is a lot of possessiveness and a lot of fights that lead to a lot of emotional crisis, right? And again, we have been taught that our emotions will guide us. तो हमें लगता है अगर हम upset हैं तो फिर हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, but ऐसा नहीं है. जैसे हम upset होते हैं तो भी स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं या जॉब पे आते हैं या we do what we are supposed to do. Similarly, you can study also. It is just that you tell yourselves that I will not be able to study. So even if you're upset with your partner, you've had a fight, you sit down and try to study, and I promise you will be able to. Again, अगर आप distract होते हैं तो फिर then go back to the 5-minute rule.
अगर आप अपसेट हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, टेल योरसेल्फ ओके 5 और मिनट पढ़ूंगा, देन आई विल गिव इट अ ब्रेक, राइट? बट डोंट जस्ट गिव इन टू योर फीलिंग्स. वी ऑल हैव आवर बिहेवियर अंडर कंट्रोल. हम अपने हिसाब से बिहेव कर सकते हैं, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग द फीलिंग. सो अपने आप को यही रिमाइंड करते रहे कि कोई बात नहीं, रिलेशनशिप एक तरफ है, पढ़ाई एक तरफ है. इट इज कॉल्ड कंपार्टमेंटलाइजिंग, राइट? अगर हमारी जॉब में टेंशन चल रही है तो उसका मतलब ये नहीं है हम घर में आके लड़ाई करेंगे. वी कंपार्टमेंटलाइज, राइट? ऐसे ही अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, डजंट मीन यू विल नॉट स्टडी. वी नीड टू सूनर और लेटर लर्न टू कंपार्टमेंटलाइज एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आल्सो. करेक्ट. सो आई बिलीव बच्चों को यहाँ पर जो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है एंड बच्चों को इसका कोई आंसर नहीं मिलता आ रहा है. अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो गया बच्चे की, उनको एक्चुअली में करना क्या है. सो रिलेशनशिप्स आर नॉट नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. अगर वो आपकी पढ़ाई को, अगर आपकी ग्रोथ को हैम्पर नहीं करता है तो, अगर आपकी वो पढ़ाई को, अगर आपकी ग्रोथ को हैम्पर कर रहा है, देन प्रोबेबली दे कैन थिंक अबाउट इट वेदर इट इज व्हाट दे एक्चुअली वांट टू डू, right? Yeah. So career is also important, and at this age relationships also play a very vital role as such. So how to make the balance out of it, probably ma'am ने आपको बच्चों को सारा समझा दिया है. That's great. Ma'am, one final question is that many of the students are attending our session right now as well, and it's not just about this particular session. They attend a lot of motivational videos. बच्चों का ये क्वेरी होता है, बच्चों का ये कंसर्न होता है कि आई वॉच अ लॉट ऑफ मोटिवेशनल वीडियोस प्रोबब्ली इन YouTube. देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेथोरा ऑफ सच वीडियोस प्रेजेंट इन YouTube एंड इंटरनेट. बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं बच्चे, मोटिवेट होते हैं और उनको लगता है कि हाँ अब कुछ करना है, अब कुछ आई कैन क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जाम बिकॉज प्रोबब्ली आई एम वाचिंग दिस पर्टिकुलर मोटिवेशनल वीडियोस. बट 2-3 दिन बाद या कुछ वीक्स बाद वो पूरा टेम्पो डाउन हो जाता है, वो मोमेंटम दे लूज, राइट? सो what should be the, मतलब is it a good thing कि मैं हर 2 हफ्ते बाद एक मोटिवेशनल वीडियो देखूं? Is it good thing या फिर हर 2 दिन बाद मैं मोटिवेशनल वीडियो देखूं जब भी मेरा मैं डिमोटिवेटेड फील हो रहा हूं? या फिर what should be the alternative for this part? मतलब how can we do this thing कि शायद in an ideal world, जब मैं let's say कि मैं 25 साल पुरानी बात करता हूं, 30 years ago, जब इंटरनेट यूट्यूब इतना ज्यादा नहीं था, तब तो लोगों के पास नहीं होती थी ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस. तब वो क्या करते थे, right? Still they were able to succeed and achieve good big goals and as such. तब वो लोग कैसे करते थे handle, and probably that is something which our students can also do, right? So that's my question to you कि motivational videos जो है बच्चे देखते हैं, अच्छा लगता है, उसको implement करने की कोशिश करते हैं, it stays with them for a shorter duration like 1 or 2 days, but still उसके बाद फिर वो die out हो जाता है. तो ये कैसे handle करें बच्चे? देखिए ये होना बहुत ही ऑब्वियस है, नेचुरल है, क्योंकि कोई भी जो सेटल नहीं होगा इमोशन, वो डाई डाउन जल्दी करेगा. जैसे हम मूवीज देख के आते हैं, जैसे आपने कोई पेट्रियोटिक मूवी देखी, यू विल कम आउट ऑफ द थिएटर फीलिंग रियली पेट्रियोटिक, एंड यू विल थिंक दैट ओके आई विल जॉइन द आर्मी और स्टफ लाइक दैट, एंड इट विल ग्रेजुअली डाई डाउन, right? So the thing is that don't rely on dramatic emotions, rely on subtle changes. अब subtle changes कैसे होंगे? Here I will say a very debatable statement that motivation according to me is really overrated. Why? Because ये मैं बहुत students से मुझे personally भी in my sessions सुनने को मिलता है that हमें motivation नहीं आती, and I tell them that don't wait for motivation to come and then do something. I'll explain how. So what we suggest is that you start doing what you have to do mechanically, step by step, making small changes. जैसे अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप सोचते हैं मुझे मोटिवेशन नहीं आती कि मैं बैठ के 1 घंटा पढूं. That will never happen. You can watch all the motivational videos, they will last for 2 to 3 days, but it will not happen. How can it happen is if you decide to give 20 minutes of your day in studying. Now a lot of people say 20 minutes से क्या होगा, मुझे तो 1 घंटा पढ़ना है, but अभी तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो let's start with 20 minutes. So start taking small steps and first focus on consistency. तो आप कोशिश करिए कि मैं consistently रोज 20 मिनट पढ़ लूं, चाहे मैं कितना भी बिजी हूँ, तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, I make time just for 15 or 20 minutes every day. Once you are able to do that, gradually you will see कि वो time अपने आप बढ़ रहा है. वही 15-20 minutes आपके half an hour हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे आप 40 मिनट्स उसको कर पाएंगे. एंड व्हेन यू आर एबल टू डू दैट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन दैट विल गिव यू मोटिवेशन. सो हम सोचते हैं मोटिवेशन आए, फिर मैं काम करूंगा, फिर रिजल्ट आएगा,
बट होता उल्टा है, आप काम करिए, रिजल्ट आएगा, फिर मोटिवेशन आएगा. सो it's the other way around. Always focus, and this I think it's a, since you said it's the last question, this is a perfect way to end it also, that always focus on your behavior. We focus way too much on emotions. हम सोचते हैं हम नेगेटिव ना फील करें, पॉसिबल नहीं है. हम मोटिवेटेड फील करें, अगेन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इमोशंस आर नॉट completely in our control, but our behavior is always completely in our control. So focus on your behavior. How would I behave if I was motivated? If I was motivated, I would study every day. तो खुद को पुश करके, जैसे आप सुबह टूथब्रश उठा के पेस्ट लगा के ब्रश करते हैं, आई एम श्योर नन ऑफ यू वेक अप फीलिंग मोटिवेटेड टू ब्रश योर टीथ. You do it mechanically because it has to be done, right? So similarly, अपनी बुक्स उठाइए और पढ़ने की कोशिश करिए mechanically, just because it has to be done. Maybe 10 minutes, maybe 15 minutes. Just focus on consistency. जब आप वो 1-2 हफ्ते कर लेंगे, then the positive, the sense of achievement that you'll feel, the positive feelings that you'll get कि मैंने 2 हफ्ते लगातार पढ़ाई करी, that will motivate you to continue. So focus on behavior, the right emotions will follow. So basically, it's all about self-motivating yourself. Your activities, your things, you basically should be self-motivating. आपको किसी और के motivation की जरूरत नहीं पड़ रही. If you are working in a well-structured way as such towards your goal. Very very well said, ma'am. Ma'am, one last tip. So these were all the questions जो कि बच्चों ने हमसे पूछे थे, जो कि मैंने आपसे पूछे यहाँ पर मीडिया मैसेज. एंड बच्चों को शायद उनके बहुत सारे डाउट्स बहुत डेफिनेटली अच्छे से क्लियर हुए होंगे. One last tip from you for all of our students who are attending our sessions, who are attending our live classes in the app as such. उनके लिए आप क्या एक कुछ final tip देना चाहेंगी during this entire this period as such? Okay, so I think the final tip would be that try to recognize that you are in control. Again, I know I've said it a lot of times, but it cannot be said enough. You are in control मतलब कि आपको social media is not distracting you. You are getting distracted by social media. Failures are not dejecting you. You are getting dejected. So putting the onus on yourself, because you're now grown up enough कि अगर हम यही कहते रहेंगे टीचर मेरे साथ अनफेयर थी, मार्क्स मेरे खराब आए, क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट था, सोशल मीडिया पे न्यूज पता नहीं कैसी डालते हैं, you will keep feeling powerless because you're focusing on things that you cannot control. So start focusing on yourself and start doing stuff just out of like I say कि mechanically आप उसे करिए. Mechanically meaning भले ही इमोशन ना आए करने का, डू इट मैकेनिकली. हम लोग डे इन एंड डे आउट कितनी चीजें मैकेनिकली करते हैं. आपको अपने टीचर पे अगर गुस्सा भी आएगा या किसी अडल्ट फिगर पे, अथॉरिटी फिगर पे घर में, तब भी आप गुस्सा नहीं निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस सिचुएशन में इट इज नॉट सपोज्ड टू बी डन, राइट? सो वी डू कंट्रोल आवर इमोशंस डे इन एंड डे आउट एंड स्टिल बिहेव नॉर्मली. सो फोकस ऑन नॉर्मल बिहेवियर. know that you are in complete control. कई बार choices easy नहीं होती है, हमें 2 negative choices के बीच में choose करना होता है, दोनों जो ideal नहीं है, but still it's your choice. Still you are the one who's choosing. So focus on that sense of control and you'll feel better. You'll feel more empowered. So basically it's about thinking positive, right? You need to have a positive approach of everything despite having so much negativity all around us. It's very important to maintain ourselves positive as such during this phase of preparation. So thank you, ma'am, for giving us your time and sharing such beautiful thoughts and answering all the queries, the most generic queries asked by our students over here. Thank you, ma'am. Thanks a lot and giving us for your time on this occasion of this World Mental Health Day. Ma'am, I believe कि आपने जो भी बोला है बच्चे उसे definitely बहुत कुछ सीखेंगे. And it is definitely going to leave a good impact for all of our students in our platform who are attending the classes. And definitely एक हम अच्छी तरीके से बच्चे सारी पढ़ाई करेंगे. जो भी बच्चे डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, शायद अभी भी उनको अगर कुछ ऐसा लग रहा है, so मैं उन सभी बच्चों के लिए बस ये बोलना चाहूंगा, बच्चों you can definitely connect with all the teachers. आपको जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं with the platform as such, आप उनके साथ डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं. उनके साथ अपनी जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, जहां से भी आपको मिलते हैं ऑप्शंस टू कनेक्ट विद द टीचर्स, मे बी टेलीग्राम हो गया या फिर आपका जो ऐप में आपका डाउट सेक्शन होता है, जो भी कुछ भी जेनरिक इश्यूज होते हैं ना जो आप फेस कर रहे हैं,
प्रोबेबली आप डेफिनेटली टीचर्स को बताइए, हमारे साथ शेयर करिए, और हम डेफिनेटली आपकी हेल्प के लिए प्रेजेंट है. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट टुडे, इवन आफ्टर टुडे आपके आने वाले टाइम में कुछ भी इश्यूज फेस करते हैं आप, प्लीज फील फ्री टू रीच अस एज सच, राइट? So thank you, ma'am. I had a wonderful time talking with you, and a lot of your insights also were really great. And I'm sure your students are lucky to have such wonderful mentors. Wishing everybody a very happy Mental Health Day. I hope everybody stays in the best of their mental health. Perfect. Thank you guys for attending the session.